स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस क्लासेस। एसएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 एडवांस मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो 5 में क्या दिया है कि A is a set where the elements are 2, 3, 4, 5 and B is another set. The elements of the set B are 3, 6, 7, 10. If A and B are the two sets and a relation R is defined as the order pair XY will be an element of the relation R such that X completely divides Y, where X belongs to the set A and Y belongs to the set B. यानी कि R रिलेशन में ऐसा ऑर्डर पेयर आएगा जहां पे अगर एक्स वाई ऑर्डर पेयर है तो एक्स वाई को डिवाइड होना पड़ेगा। Y विल बी डिविजिबल बाय एक्स, एक्स कंप्लीटली डिवाइड्स Y, यानी एक्स से अगर हम लोग को Y को डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 होता है। सॉरी, और जो x होगा वो x सेट से बिलोंग करेगा और जो y एलिमेंट होगा ये b सेट से बिलोंग करते हैं। देन राइट द रिलेशन r इन टेबुलर फॉर्म। ये जो r दिया है, रिलेशन r इज गिवन इन सेट बिल्डर मेथड, राइट, डेफिनेशन। Then you have to represent this relation in tabular form. That means you have to note you have to write down all the elements separately, right? Then also represent R by arrow diagram and matrix table. So we have to show the arrow diagram for the relation R. At the same time, you have to represent this in the matrix table. And in question number 6, it is related to question number 5 only. So if you know the relation R, that means if the elements of the relation R is known to us, then you have to find R inverse of the relation R. What will be R inverse of the relation, which is the question number 5? The relation R given in question number 5. Then you have to find the R inverse in question number 6, and also you have to find domain of the R inverse and range of R inverse. So these two questions will be solving together here today, and I hope you have visited our previous videos, right? We have already uploaded 3 videos regarding relations and basic definitions or basic things were discussed in the last 2 videos, part 1, part 2. And in part 1 we have discussed up to question number 1, 2, 3. Then today we are discussing question number 5 and 6. Let us solve this question. Okay, so solution of question number 5. Here 2 sets are given to us. The set A, which is the set 2, 3, 4, 5, and set B is given as 3, 6, 7, 10. Now you see xy will be in R if x completely divides y, and x will be from A and y from the set B. That means, you know, if you have any relation from A to B, then it should be from A cross B only. अगर हम लोग A cross B निकाल लेते हैं तो हम लोग को जो भी रिलेशन का एलिमेंट्स आएगा वो हम लोग वहां से देख के लिख सकते हैं, क्योंकि A cross B का ही एलिमेंट सब आएगा R में. Any relation from A to B will be a subset of A cross B only. So if we know A cross B, then it will be easier for us to identify the elements what will be there in the set R, right? Let us first find A cross B. A cross B में क्या आएगा? A में जो एलिमेंट है 2, इसके साथ में B का हर एक एलिमेंट का यानी कि टोटल 5 एलिमेंट्स हम लोग को मिलेगा। ठीक इसी तरह से 4 ऑर्डर पेयर मिलेगा। 3 के लिए 4 ऑर्डर पेयर, 4 के लिए 4 ऑर्डर पेयर, 5 के लिए 4 ऑर्डर पेयर। टोटल विल हैव 4 into 4 16 ऑर्डर पेयर्स, डिफरेंट ऑर्डर पेयर। सो क्या क्या ऑर्डर पेयर आएगा? 2 के साथ पहले 3 आएगा, 2, 3, देन 2, 6, एक ए का आएगा, एक बी का आएगा, देन 2, 7, देन 2, 10, देन 3 से शुरू होगा, 3, 3, 3, देन 3, 6, देन 3, 7, देन 3, 10, देन 3 के बाद 4 आएगा, 4, 3, then 4, 6, then 4, 7, then 4, 10. फोर के बाद क्या है? 5 है, तो 5, 3, then 5, 6, 5, 7 और 5, 10. ठीक है, we have 1, 2, 3, 4,
In this way, 4, 4, 4, 16 elements. 4, 4 set we have order pairs for 2, then order pairs 4 order pairs for 3, 4 order pairs for 4, and 4 order pairs for the element 5. Total we have 16 order pairs here, and any relation will be a subset of this set across B. अभी हम लोग को जो R दिया गया है, R में क्या दिया है कि एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर आएगा अगर x जो है कॉम्प्लीटली डिवाइड करता है किसको, y को, कॉम्प्लीटली divides y where x belongs to A and y belongs to the set B. अभी हम लोग को A क्रॉस B से ही यहाँ पे एलिमेंट्स को पिक करके लाना है. ऐसा एलिमेंट्स आएगा जो कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेकंड कंपोनेंट को कंप्लीटली डिवाइड करता है. तो हमको चेक करना होगा, हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे क्या 2 3 को डिवाइड जाता है, 2 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, नहीं. 2 से 3 को डिवाइड करने से 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर रहेगा. क्या 2 से 6 को डिवाइड जाएगा, यस, 2 3 जा 6. तो हम लोग को एक एलिमेंट मिल गया 2 6. देन 2 7 क्या आएगा, नहीं आएगा. 2 10 आएगा, यस 2 10 आएगा हम लोग को, यहाँ पे 2 10 आएगा. 3 3 आएगा, यस 3 से हम लोग को 3 को डिवाइड कर सकते हैं तो 3 3 भी आएगा यहाँ पे. क्या 3 6 आएगा, यस 3 6 भी आएगा. 3 से हम लोग 6 को डिवाइड कर सकता है. यानी कि ऐसा ऑर्डर पेयर ले रहा है जो फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. 3 7 से आएगा, नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि 3 को 7 से 3 से 7 को डिवाइड करने से 2 टाइम जाएगा और हम लोग के पास रिमाइंडर 1 रह जाएगा. रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है. रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब वो इस आर का पार्ट नहीं है. 3 10 नहीं आएगा, 4 3 नहीं आएगा, 4 6 नहीं आएगा, 4 7 नहीं आएगा, 4 10 नहीं आएगा, 5 3 नहीं आएगा, 5 6 नहीं आएगा, 5 7 नहीं आएगा, 5 10 आएगा, 5 10. इसके अलावा और ऐसा कुछ एलिमेंट्स नहीं है अक्रॉस बी में जो फर्स्ट कंपोनेंट जो सेकंड कंपोनेंट को डिवाइड करता है. तो वी हैव ओनली दिस 5 एलिमेंट्स, राइट. सो दिस इज द सेट R which is in tabular form. Okay, so this is the set R. Now we have to represent R by arrow diagram. अगर एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है तो हम लोग को इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा. यहाँ पे हम लोग को दो सेट मिल रहा है A और B. A में क्या क्या एलिमेंट है, 2 3 4 5, 2 3 4 और 5. देन B में क्या है, 3 6 7 और 10, 3 6 7 10. अभी हम लोग यहाँ पे ये जो एरो डायग्राम होगा ये 2 किसका साथ रिलेटेड है, 2 6 के साथ. यानी 2 से 6 तक का हम लोग एक एरो डायग्राम बनाएगा. देन 2 से 10 तक का भी एक एरो जाएगा इस तरह से. फिर 3 से 3 तक का जाएगा, 3 से 3 तक का जाएगा इस तरह से. देन 3 से 6 तक का जाएगा तरह से. देन 5 से 10 तक का जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एरो डायग्राम. और मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिख देते इसको, ये एरो डायग्राम है. जो भी एलिमेंट्स इस रिलेशन का पार्ट है, यहां से ये रिलेशन है, आर रिलेशन से ये लिंक्ड हो चुका है आर. ओके, ये आर रिलेशन से है. आर रिलेशन में क्या है कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है ये सेकंड कंपोनेंट को कंप्लीटली डिवाइड करता है. और ये जो हम लोग का है ये क्या हो गया, ये डोमेन ऑफ आर हो गया. यानी कि आर सेट में जो भी फर्स्ट कंपोनेंट आया हुआ है 2 3 6 2 3 5, ये 2 3 5 जो है ये डोमेन कहलाएगा. और ये जो 3 6 10 है, ये 3 6 10 है, इसको क्या कहेगा, रेंज ऑफ आर. ठीक है, अब इसका मैट्रिक्स टेबल किस तरह से होगा, हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स टेबल ड्रॉ करते हैं. नीचे में क्या ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, यस, यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स टेबल भी ड्रॉ करते हैं. ये ए सेट है, इस तरह से गया, ये बी सेट है. तो हम लोग को ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं. ए में क्या है, 2 3 4 5, 2 2 3 4
और ये है 5, राइट, 2 3 4 5। और बी का क्या एलिमेंट्स है? 3 6 7 10, 3 6 7 10। राइट, सो वी हैव द टू सेट ए बी एंड ये ए एरो में नीचे में है, यानी ए का एलिमेंट्स है, ये इस तरफ बी है, यानी बी का एलिमेंट्स है। अब ये जो आर रिलेशन है, आर रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर आया हुआ है वो ऑर्डर पेयर के बॉक्स पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, अदरवाइज 0। तो यहाँ पे 2 3 है, क्या 2 3 यहाँ पे है? नहीं है, तो यहाँ पे 0। इस लाइन में क्या है? ये बॉक्स क्या रिफर कर रहा है? ए का 2 है और बी का 6 है, यानी कि 2 6। क्या 2 6 है? यस, तो यहाँ पे 1 देगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हम लोग का 2 7, क्या ये है? नहीं है, तो 0। 2 10 है, यस, 2 10 है हम लोग के पास, तो 1 दिया। देन 3 के साथ में 3 3 है, यस, 1। 3 6 है, 1। 3 7 0, 3 10 0, 4 3 0, 4 6 0, 4 7 0, 4 10 0, 5 3 0, 5 6 0, 5 7 0 0, यानी कि ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। 5 10 है, यस, 1। तो ये जो हम लोग का पास 1 2 3 4 बॉक्स में हम लोग को 1 मिला हुआ है, यानी कि वी हैव 4 एलिमेंट्स, टोटल वी शुड हैव 5, राइट, यस, 1 2 3 4 5। तो हम लोग के पास ये जो 5 एलिमेंट्स मिला हुआ है, जहां पे 1 1 है, वही एलिमेंट क्या है? ये आर का रिलेशन है। तो इट इज द मैट्रिक्स टेबल, ओके, मैट्रिक्स टेबल of R, matrix table of the relation R. It is the arrow diagram of the relation R, okay. So this is the matrix table for the relation R, and this is the arrow diagram for the relation R. So this was question number 5. I hope you have understood it. There should be no doubt actually. First of all, we must know what is across B, then only I can pick those elements from across B which satisfies this condition, right? across B हम लोग पहले निकाल लिया। अब across B का जो भी ऑर्डर पेयर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी को हम लोग R में लिखेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम लोग को दूसरा क्वेश्चन में भी जाना है, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या है? एक इस तरह से सेट है, बी इस तरह से है, और जो रिलेशन आर है ये सेम है, यानी कि हम लोग को ये आर रिलेशन दिया हुआ है, आर रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि डिटरमाइन आर इनवर्स। ये जो आर दिया है, तो अभी आर इनवर्स क्या होगा निकालने बोला हम लोग को। तो व्हाट विल बी आर इनवर्स? देयरफॉर आर इनवर्स विल बी इक्वल टू द सेट, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है ना, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 2 6 है, तो ये 6 2 हो जाएगा, 6 2, देन 10 2, देन यहाँ पे 3 3, देन यहाँ पे 6 3, और यहाँ पे 10 5। यानी कि ये जो भी एलिमेंट्स था, इसका फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट में लेके आया, सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट पे लिखा। 2 10 था तो 10 2 हो गया, 3 3 था 3 3 है, 3 6 है तो 6 3, 5 10 था तो 10 5। यहाँ पे कॉमा आना पड़ेगा, ठीक है। हर एक ऑर्डर पेयर के बीच में एक कॉमा, और एक ऑर्डर पेयर में जो कंपोनेंट्स है उसके बीच में एक कॉमा। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन, यू नो हाउ टू राइट द ऑर्डर पेयर्स। सो दिस इज आवर R inverse, that is the inverse relation of R. Now we have to find again D inverse. Therefore this, ये जो R inverse है, ये R inverse का डोमेन क्या है? डोमेन यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट 6 10 3 6 10, यानी कि 6 10 और 3, ये तीनों एलिमेंट्स हम लोग को मिला है, 3 6 10। और इसका जो रेंज है, रेंज ऑफ R इनवर्स, इसमें क्या एलिमेंट्स आ रहा है? रेंज बोलने से सेकेंड कंपोनेंट को लेना है, 2 2 3 3 5, यानी कि 2 2 तो हम लोग को 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का रेंज ऑफ आर इनवर्स एंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स। दिस वाज द क्वेश्चन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग ये लिख भी सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी क्या है वो दिया हुआ है, आर बी क्या हुआ दिया है, क्योंकि आर को डायरेक्टली आप दे सकते हैं, और यू कैन से दिस इज द रिलेशन। तो यही रिलेशन को हम लोग को क्या करना है? इनवर्स रिलेशन निकालना है। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि राइट द इनवर्स रिलेशन ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय दी एलिमेंट्स दिस।
then R inverse will be equal to this set and domain of R inverse will be this and range of R inverse will be this. रेंज में क्या आता है, वो रिलेशन का सेकंड कंपोनेंट का एलिमेंट आता है और डोमेन में फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट बनता है वो सेट आता है। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 का आंसर मिला हुआ है। अगर समझ में नहीं है तो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कहाँ पे डाउट है, हम उसको फिर से एक बार समझाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे हम लोग बाकी जो क्वेश्चंस रह गया है उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।